Hello and welcome back. Today we'll be doing part 2 of our chapter 5, that is democratic resurgence. Okay, so in part 1 we have done about Narayan ji, Jayaprakash Narayan ji. So in this chapter we'll be doing Ram Manohar Lohia ji and Pandit Deen Dayal Upadhyay. Okay, so we have to do their ideology which has been added new to this chapter. So first of all, let us start with Ram Manohar Lohia ji. Now, you know Ram Manohar Lohia, we have discussed earlier also. He was a socialist leader. He had very rigid socialist approach. He was a thinker. He was freedom fighter also, and he was among the founders of Congress Socialist Party. Now, I told you in previous slide only that in Congress Party there was a split, and in that split only a new party was formed, that was Congress Socialist Party. Now this party had many founders. Out of them, one founder was Ram Manohar Lohia. Then Congress Socialist Party, it also got split from its parent party and new party was formed, Socialist Party. Means from Congress came out Congress Socialist Party, from Congress Socialist Party came out Socialist Party. Ram Manohar Lohia was in that party, and from Socialist Party another party came out, that is Samyukt Socialist Party member. Now he was the member of this Samyukt Socialist Party also. So first of all he was in Congress, then he came in Congress Socialist Party, then he came in Socialist Party, and after that in Samyukt Socialist Party. Okay, so he was an adamant follower of socialism. Now this Ram Manohar Lohia ji, he fought elections, third general election in 1962. Okay, but he lost the elections, and then in 1963 he by some by-elections he won from some constituency and he became the member of Lok Sabha till 1967. And then he was also the founder of Mankind, a magazine that is known for original contribution to non-European socialist theory. Now what was there, basically I told you he was the follower of socialism, but his theory of socialism was different from what was being followed in USSR, because I told you he gave original theory of non-European socialist, कि जो यूरोपियन थ्योरी नहीं थी सोशलिज्म के ऊपर, इन्होंने वो थ्योरी दी जिसमें ये था, क्योंकि यूएसएसआर की सोशलिज्म किसके ऊपर बेस थी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की गवर्नमेंट, वर्कर्स के राइट्स. तो कोई भी जो थ्योरी होती है वो तब प्रैक्टिकल होती है अगर वो आपकी कंट्री, आपके लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो सके. ओके, तो वो जो यूएसएसआर का सोशलिज्म था, इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडिया. रीजन बीइंग, इंडिया में वर्कर्स दे वर नॉट वेरी पावरफुल. जो जब वहाँ पे ज़रूरत, इंडिया में ज़रूरत थी, वो ज़रूरत थी लॉज बनाने की फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए. तो वो सोशलिज्म थ्योरी जो वर्कर्स के ऊपर बेस्ड थी, इट वाज नॉट सक्सेसफुल फॉर इंडिया. तो इन्होंने जो थ्योरी दी सोशलिज्म की, दैट वाज बेस्ड ऑन फार्मर्स एंड पीजेंट्स. तो इसलिए बोला जाता है कि इनकी नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी थी. सो यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी वाज बेस्ड ऑन वर्कर्स, सो दिस वाज नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ पंडित नेहरू. पंडित नेहरू के बहुत स्ट्रांगली ये पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करते थे. ठीक है, और मैंने आपको बताया 1962 की इलेक्शंस में ये खड़े हुए बट हार गए. तो पंडित नेहरू भी उन इलेक्शंस में खड़े थे 1962 में. पंडित नेहरू की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ से वो खड़े होते थे, दैट वाज फुलपौर. ठीक है, तो ये फुलपौर इलाहाबाद एरिया के पास है, इलाहाबाद एरिया में आती है फुलपौर, जहाँ से पंडित नेहरू खड़े होते थे और जीतते थे. तो जब कैनवेसिंग का टाइम था, कैंपेनिंग का टाइम था, पंडित नेहरू ने बोला कि आई डोंट नीड कैंपेनिंग, मुझे कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं है. बट जब उन्होंने देखा कि राम मनोहर लोहिया भी वहीं से खड़े हुए हैं और वो बड़े ज़ोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचे भी चले जा रहे हैं, तो पंडित नेहरू सब छोड़ छाड़ के वो भी कैंपेनिंग के लिए आ गए. तो ये कहा जाता है कि चाहे वो क्रिटिक्स थे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, एक दूसरे की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, बट
तब मैंने आपको पहले भी बताया ऐसी पॉलिटिक्स नहीं थी जैसी आज थी, मतलब डर्टी टर्म्स, डर्टी वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते थे, एक दूसरे को टॉलरेट किया जाता था, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लिया जाता था। और ये कहा जाता है कि दिन भर ये कैंपेनिंग करते थे दोनों और शाम को एक दूसरे के अगेंस्ट नारेबाजी देते थे, स्पीचेस देते थे, कैंपेनिंग करते थे और शाम को दोनों इकट्ठे बैठकर चाय भी पी लेते थे। फाइन, सो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ नेहरू। इसके अलावा जो हमने लास्ट चैप्टर में नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी की है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई कांग्रेस के अगेंस्ट और उन्होंने उसको एक नेम दिया गया नॉन कांग्रेसिज्म। तो ये नेम भी किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। आई हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी इन प्रीवियस चैप्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इस फेवर में थे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर रिजर्वेशन के फेवर में थे। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ही वॉज अपोज टू इंग्लिश। किस लिए? क्योंकि इनको लगता था कि जो इंग्लिश है वो है तो एक मीडियम ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका है, बट इसको स्टेटस सिंबल माना जा रहा है, इसको स्टेटस सिंबल बनाया जा रहा है कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत हाई फाई है, अदरवाइज बाकी नहीं। तो इसलिए ये इंग्लिश के बहुत सख्त खिलाफ थे कि ये सिर्फ एक बोलने वाली लैंग्वेज ही तो है, भाषा ही तो है, तो इसको इतनी ज़्यादा स्टेटस सिंबल क्यों बनाया जा रहा है? वाई नॉट आर रीजनल लैंग्वेजेस आर बीइंग गिवन इम्पोर्टेंस? हमारी भाषाओं को, हमारी लैंग्वेजेस को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं हम दे रहे जितनी कि इंग्लिश को स्टेटस सिंबल हम लोग मान रहे हैं। सो अगर हम इनकी आइडियोलॉजी की बात करें, राम मनोहर लोहिया जी की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये याद रखना है आपने, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी इनकी, ठीक है। तो ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म, ये आपको पता चल गया। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी दैट वाज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें इन्होंने सोशलिज्म को डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट किया। तो जो राम मनोहर लोहिया, उनका ये मानना था कि जो कैपिटलिज्म अप्रोच है जो यूएसए फॉलो करता है, या जो सोशलिज्म अप्रोच है जो यूएसएसआर फॉलो करता है, ये इंडियन सोसाइटी के लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों की सोच अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारी पॉलिसीज अलग हैं, तो ये दोनों ही अप्रोच हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा जो हमारी सोसाइटी है उसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहिए, जिसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें लोगों के पास घर हो, खाने के लिए हो, ठीक है, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक टर्म्स में, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी वेरी लेस। और एक नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, नॉन इकोनॉमिक मीन्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें डेमोक्रेसी और फ्रीडम होनी चाहिए, ट्रू डेमोक्रेसी कंट्री में, और लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए टू डू द थिंग्स इन देयर वे। ओके, सो आपको पता है जब आज भी हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं हम ये कहते हैं कि अगर हमने लोगों को राइट्स दिए हैं, पॉलिटिकल राइट्स तो सबके पास है, राइट टू वोट एंड ऑल, बट जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी, आपने क्लास 11th में भी पढ़ेगा था, जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिकली लोग बराबर नहीं होंगे, वो गैप नहीं कम होगा, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का हमने क्या करना है, हमने वोट डाल के क्या करना है, जब तक इक्वालिटी ही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीज़ राम मनोहर लोहिया जी ने बोली थी कि 2 डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इनकी थ्योरी थी, जिसमें वन वॉज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि इकोनॉमिकली पीपल शुड बी गुड इनफ कि उनके पास घर हो, खाना हो, एंड रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि देयर शुड बी ट्रू डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड देयर शुड बी फ्रीडम्स विच शुड बी गिवन टू द पीपल। सो दिस वॉज हिज आइडियोलॉजी रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, दिस वॉज हिज सोशलिज्म। इनका सोशलिज्म कैपिटलिज्म से रिलेटेड नहीं था, ना इनका सोशलिज्म यूएसएसआर के सोशलिज्म से रिलेटेड था, इनका सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था, जिसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और या फ्रीडम्स होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी थी लोगों के लिए, कंट्री के लिए, so that they can develop, they can flourish. So next is इनकी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग लोहिया जी ने चौबुर्ज राजनीति की बात की, ठीक है, कि पॉलिटिक्स है जो हमारी वो 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं और सोशलिज्म के हैं। एक है सेंटर, एक है रीजन, एक है डिस्ट्रिक्ट, एक है विलेज, और इन सब का आपस में लिंक है, दे ऑल आर डिपेंडेंट। सो यू रिमेंबर जो जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था, उन्होंने 3 पिलर्स दिए थे, 3 मेन थिंग्स दी थी जो फेडरलिज्म बनाती हैं। एक थी कम्युनिटी, एक थी स्टेट, एक था राष्ट्र, ठीक है। और इन्होंने सेंटर दैट इज राष्ट्र, रीजन अगेन स्टेट,
कम्युनिटी की जगह इन्होंने किया है डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। मतलब बीइंग अ गुड पॉलिटिशियन, इनको ये था कि अगर राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, तो वो पॉलिटिक्स इन 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी होनी चाहिए, जो एक ट्रू सोशलिज्म होता है, जिससे वेलफेयर होगा पूरे के पूरे इंडिया के लोगों का। ओके, सो ये 4 थिंग्स जो उन्होंने बोली वो है सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, और ये चारों एक दूसरे से मिली जुली हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस वॉज हिज चौबुर्ज राजनीति। देन आफ्टर दैट गिविंग कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव इज पॉजिटिव एक्शन। इनका हर वक्त ध्यान रहता था पॉजिटिव एक्शन। किस चीज का पॉजिटिव एक्शन? दैट रिजर्वेशन है जो, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन मिली हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिली हुई थी। ही सेड दैट जो अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन, इट शुड नॉट ओनली बी फॉर डाउन ट्रोडन, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको मिली हुई है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, बट रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर वुमेन ऑल्सो एंड नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो रिलीजन के बेसिस पे नहीं है बट वैसे माइनॉरिटी में है हमारी कंट्री में, कम रेशो में है, कम पॉपुलेशन में है, प्लस जो वुमेन है, रिजर्वेशन उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट उनको इक्वालिटी मिल सके, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके आगे आने की। Okay, then next one is based on premise of democratic socialism and Chauburj Rajniti. Lohia supported Party of Socialism as an attempt of merging all political parties. So राम मनोहर लोहिया जी का क्या कहना था? चौबुर्ज राजनीति को माइंड में रख के, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को माइंड में रख के कि इकोनॉमिकली भी इक्वल हो और पॉलिटिकली भी इक्वल हो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बेसिकली ये है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स दोनों को इंक्लूड करो। तो उनका मानना था, इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख के उनका मानना था जितनी भी सोशलिस्ट पार्टीज हैं कंट्री में, आपको पता है जो नेहरू थे वो भी सोशलिज्म में विश्वास रखते थे, वो भी सोशलिस्ट लीडर थे, इक्वालिटी के थे। राम मनोहर लोहिया भी सोशलिस्ट, बट फिर भी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। इनकी आइडियोलॉजी में, सोच में फर्क था, दोनों इकट्ठे नहीं काम कर पाते थे। तो राम मनोहर लोहिया जी का कहना था कि एक ही पार्टी बन जाए, सारी सोशलिस्ट पार्टी इकट्ठी हो जाए, मर्ज हो के एक पार्टी बनाए, दैट बिकम्स द पार्टी ऑफ सोशलिज्म। और ये सोशलिज्म की जो पार्टी होगी, इसके 3 सिंबल होंगे, 3 सिंबल्स होंगे। एक होगा स्पेड, स्पेड का मतलब है एफर्ट्स करना, ठीक है, मेहनत करना। दूसरा होगा वोट, पावर ऑफ वोटिंग, डेमोक्रेटिक राइट है जो। और तीसरा होगा प्रिजन, प्रिजन सिंबलाइज करता है सेक्रीफाइस को, बलिदान देने को, ठीक है। तो अगर आप एफर्ट्स करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हो, तो जो वोटिंग राइट है, जो आपकी पावर्स है, जो आपकी फ्रीडम है, वो ऑटोमेटिकली ही आपके पास आ जाएंगी और आपको ऑटोमेटिकली ही फ्रीडम मिलेगी, राइट्स मिलेंगी टू वोट एंड फॉर हैविंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन योर कंट्री। सो ये राजनीति थी राम मनोहर लोहिया जी की, ये उनकी आइडियोलॉजी थी, ये उनकी सोच थी, जिसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आएगा, जिसमें चौबुर्ज राजनीति आ जाएगी। चौबुर्ज में चौ मीन्स 4, बुर्ज मीन्स पिलर्स, तो ये चारों पिलर्स सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आ जाएंगे। देन आफ्टर दैट उनकी पॉलिसी की देयर शुड बी पार्टी ऑफ सोशलिज्म होनी चाहिए, सारी सोशलिस्ट अप्रोच वाली पार्टी से इकट्ठी हो जाएं और उसके ये 3 सिंबल्स बने पार्टी के, जो कंट्री के लिए काम करें और कंट्री में सोशलिज्म, एक्चुअल सोशलिज्म कंट्री में लेके आए। अपार्ट फ्रॉम दैट रिजर्वेशन की पॉलिसी जो सिर्फ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए ना हो, बल्कि वुमेन और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी होनी चाहिए। So next we come to another reformer who was दीन दयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय। So ये जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय थे, ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, थिंकर ऑफ राइट विंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड कॉज्ड बाय RSS एंड लीडर ऑफ पॉलिटिकल भारतीय जनसंघ एंड फोर रनर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो ये भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और इनका ये तीनों चीज़ों, ये हिंदुत्व पॉलिसी को, मतलब जो हिंदू रिलीजन के कस्टम्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, नॉट रिलीजन बेसिकली, जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, तो ये उसको बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। और ये उसकी जो विंग्स है, दैट इज़ RSS, जो हिंदुत्व को फॉलो करती है, प्रेशर ग्रुप है ये राष्ट्रीय समाज सेवक संघ। उसके बाद जो BJS है, दैट इज़ भारतीय जनसंघ,
ये बीजेएस क्या है, ये आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, ठीक है। तो ये और इसी से निकली है भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी पार्टी निकली है वो बीजेएस से निकली है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ये इन तीनों के साथ जुड़े हुए थे, तीनों के साथ एसोसिएटेड थे। वो आरएसएस के भी मेंबर थे, वो बीजेएस में भी लीडर रह चुके हैं, और वो जो बीजेपी है इसमें भी ये फोररनर थे, मतलब इसमें भी इन्होंने काम किया है। ओके, सो इनकी जो सोच थी, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट वाज रिलेटेड टू हिंदुत्व सोच के थे ये, फाइन। देन आफ्टर दैट उपाध्याय स्टार्टेड मंथली पब्लिकेशन। अगर अब इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो राष्ट्रीय धर्म नाम की जो एक मंथली मैगजीन थी वो निकालते थे इन 1940s। और वो बीजेएस, मैंने आपको पहले भी बात बोला है, भारतीय जनसंघ है जो, उसमें वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फ्रॉम 1967 टू 1968, फाइन। और 1968 के बाद फिर इनकी डेथ हो जाती है। देन इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस भी लड़े 1963 में, बट ही लॉस्ट, ये हार गए थे। और जो इनकी डेथ हुई थी वो बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर हुई थी। जब इनकी डेड बॉडी मिली, वो डेड बॉडी वाराणसी में मुगल सराय जंक्शन है, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन है, उसके पास इनकी डेड बॉडी मिली 1968 में। और मतलब बहुत सारी रिसर्च हुई इसके पीछे कि इनकी डेथ हुई कैसे, बट कुछ हाथ नहीं लगा। फाइनली यही कहा गया कि बगलर्स ने मार दिया होगा, मतलब ये चोर डाकू इन्होंने ही मार दिया होगा, फाइन। बट इनकी डेथ के 50 ईयर्स बाद, बहुत लेट, वो जो रेलवे स्टेशन जहाँ पे डेथ हुई थी उसको मुगल सराय रेलवे जंक्शन है, उसको रीनेम कर दिया गया, एंड टुडे इट इज़ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 2018 में उसका नेम चेंज करके उसको दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नेम दे दिया। अर्लियर इट वॉज मुगल सराय जंक्शन। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दीनदयाल उपाध्याय की जो मेन क्या था, वो आरएसएस के मेंबर थे। फिर बीजेएस, दैट इज भारतीय जनसंघ, आरएसएस की पॉलिटिकल विंग थी, पॉलिटिकली वो काम करती थी, बिकॉज जो आरएसएस वाज प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कभी नहीं आता। तो बीजेएस जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसके थ्रू उनके मेंबर्स काम करते थे, और ये बीजेएस के द्वारा ही बीजेपी बनी है, मतलब बीजेएस से ही बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। तो आगे हम देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी। नाउ लेट अस टॉक ऑफ दीनदयाल उपाध्याय फिलॉसफी, कि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, वो क्या थी। सो बेसिकली पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ही वॉज अ फिलोसफर, ही वॉज सोशियोलॉजिस्ट, ही वॉज इकोनॉमिस्ट एंड ही वॉज पॉलिटिशियन ऑल्सो। और जो उनकी फिलॉसफी थी, दैट वॉज नेम्ड एज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ओके, which was intended to present indigenous social economic model, social और economic model दोनों included थे उसमें, और इसमें ह्यूमन बींग्स वॉज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अगर पॉलिटिक्स भी होनी है, ह्यूमन बींग सेंटर में है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी ह्यूमन बींग शुड बी इन द सेंटर, सोसाइटी को लेके भी ह्यूमन बींग इज द सेंटर पॉइंट। तो ह्यूमन बींग शुड बी एट द सेंटर, ये था इनकी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, I have told you that he was the member of RSS, he was the member of राष्ट्रीय जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी। जो अब राष्ट्रीय जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी थी, जो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोग ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रीज़न बीइंग, क्योंकि वो आरएसएस के पीछे चलती थी, हिंदुत्व के पीछे, और लोगों को लगता था कि ये कॉम्युनल लाइंस पे चल रही है, ठीक है, रिलीजियन बेस्ड लाइंस पे चल रही है, इसलिए लोग ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करते थे। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी आइडियोलॉजी बनाई, दैट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये उसी राष्ट्रीय समाज सेवक संघ आरएसएस, या आप बोलो राष्ट्रीय जनसंघ की जो आइडियोलॉजी थी, राष्ट्रीय जनसंघ की आइडियोलॉजी और जो आरएसएस का हिंदुत्व की फिलॉसफी थी, उन दोनों का ये मिश्रण था, उन दोनों का ये घोल था, ठीक है। और इसी के थ्रू वो उस पॉलिसी को लोगों को अडॉप्ट करवाना चाह रहे थे, मतलब उसको तो लोग पसंद नहीं कर रहे थे जो राष्ट्रीय समाज सेवक संघ की थी या राष्ट्रीय जनसंघ की फिलॉसफी को। लोगों को लगता था ये धर्म के नाम पे है, ये धर्म को इंक्लूड कर रही है, रिलीजन को इंक्लूड कर रही है, बट बेसिकली इट वॉज रिलेटेड टू हिंदुत्व, हिंदू के जो लॉज है, फिलॉसफीज हैं,
जो मॉरल्स हैं वो लोगों को सिखाती थी। हिंदू धर्म को प्रमोट नहीं करती थी, हिंदुइज्म सिखाती थी। हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, तो वो चीज़ सिखाती थी। तो आरएसएस और राष्ट्रीय जनसंघ, इन दोनों की जो भी सोच थी, उनका जो मिश्रण था, उनका जो मिक्सचर था, दैट वाज इन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और इसी चीज़ को वो ये लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। फाइन। So the aim of integral humanism is to ensure dignified life for every human being, की हर ह्यूमन बींग की जो लाइफ है वो एक डिग्निफाइड तरीके, अच्छे तरीके से निकले, जहाँ पे जो कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसके अलावा जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। इंडिविजुअल और सोसाइटी की नीड्स में देयर शुड बी अ बैलेंस, मतलब इंडिविजुअल शुड मूव अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड सोसाइटी शुड मूव अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स। इसके अलावा ये सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि नेचर से जो नेचुरल रिसोर्सेज आपको जितनी ज़रूरत है उतने ही लो, बाकी छोड़ दो, बाकी मत लो, और जो आप ले रहे हो उसको रिटर्न भी करो। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये विश्वास रखते थे कि यूज एज मच एज यू वांट एंड रेस्ट सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और नेचर को फालतू में मत छेड़ो ताकि वो खुद को रिप्लेनिश, खुद को दोबारा से वो ग्रो कर सके, दोबारा से वो बन सके, ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग हिज अप्रोच ऑन रिसोर्सेज एंड नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीग्रल ह्यूमनिज्म enhances not only political but also economic and social democracy। तो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास था कि बराबरी हो, इक्वालिटी हो, हर कोई इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, सबको वोटिंग राइट है, बल्कि इसके अलावा इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ पीपल। सो यू रिमेंबर जो हमने पहले किया है, राम मनोहर लोहिया जी की जो फिलॉसफी और इनकी यहाँ पे जो बातें हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये चीज़ें मिल रही हैं, जैसी वो और ये मतलब सोच एक जैसी बन रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक मीन्स इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड, गैप बिटवीन रिच एंड पीपल शुड बी रिड्यूस्ड, एंड सोशल डेमोक्रेसी मीन्स इक्वालिटी ऑफ द पीपल, और फ्रीडम्स शुड बी गिवन टू द पीपल। तो इस चीज़ में इनका विश्वास था कि सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। And he used to say that as it seeks to promote diversity, it is best suited for the country as diverse as India। तो ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, ये डाइवर्स कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ होती हैं, ये उनको सूट करती है, ठीक है। रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करना, देन उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड देन हर चीज़ का जो सेंटर पॉइंट है वो एक प्योर सोल होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग प्योर सोल होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके वो आगे चलते थे और ये कहते थे ये सारी चीज़ें वहीं पे होंगी जहाँ डाइवर्सिटी होगी, और वहीं पे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की अप्रोच चलेगी। जैसे इंडिया है, इंडिया में भी आपको पता है देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कैन वर्क इन अ वेरी गुड मैनर, जिसमें रिसोर्सेज का ध्यान रखा जाए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी का ध्यान रखा जाए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ध्यान रखा जाए, एंड ह्यूमन बीइंग शुड बी द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवरीथिंग। ह्यूमन बीइंग बीच में हो, हर चीज़ उसके आसपास रिवॉल्व होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। सो नेक्स्ट द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। अभी मैंने आपको उसकी इंट्रोडक्शन दी है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या था बेसिकली, तो ये 3 प्रिंसिपल्स पे चलती है, ठीक है, चलती थी। वन इज प्रेमिसी ऑफ होल नॉट पार्ट। इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, होल को, मतलब पूरे को, आधे को नहीं। और हम वी बीइंग एन इंडिविजुअल, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। पूरा कब बनता है, होल कब बनता है, जब हम सभी इकट्ठे हैं। इज इट क्लियर? तो व्हेन वी ऑल आर टुगेदर वी बिकम होल। तो इस होल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि टुकड़ों को, ना कि सिर्फ मुझे मिल गई, आपको मिल गई है, इसको इंपॉर्टेंस मिल गई। इंपॉर्टेंस हम सबको एज अ सोसाइटी मिलनी चाहिए। सेकेंड, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म। अब यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है कि धर्म की, रिलीजन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। यहाँ पे धर्म का मतलब है काम। काम हमारा धर्म है, वर्क इज आर रिलीजन बेसिकली। तो
वी शुड गिव मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस टू आवर वर्क। हम जितना अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट होगी, उतनी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी और उतनी नेशन की डेवलपमेंट होगी। एंड थर्ड इज ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। ऑटोनॉमी का मीनिंग आपको पता है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी मतलब सबकी फ्रीडम होनी चाहिए, सबको सोसाइटी में इट्स नॉट लाइक दैट कि सोसाइटी घुट घुट के बंद के काम करे। देयर शुड बी फ्रीडम गिवन टू सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी किसकी बनी है? लोगों की, इंडिविजुअल्स की। उनको फ्रीडम मिली तो इसका मतलब सोसाइटी को अपने आप फ्रीडम मिल गई। सो ये तीन चीज़ों से के ऊपर जो दीन दयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का फिलॉसफी थी, ये तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। Now, Pandit Deen Dayal Upadhyay opposed both Western capitalist individual and Marxist socialism. According to him, capitalist and socialist ideology only consider the need of human mind and body. They are based on basically materialistic purpose, whereas spiritual development is equally important for the complete development of human being, which is missing. अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हिसाब से जो वेस्टर्न कंट्रीज की कैपिटलिस्ट अप्रोच थी और जो यूएसएसआर की सोशलिज्म या ईस्टर्न कंट्रीज की सोशलिज्म अप्रोच थी, मार्क्सिज्म अप्रोच थी, वो इसके खिलाफ थे, वो इसके अगेंस्ट थे। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो दोनों अप्रोच है, कैपिटलिस्ट अप्रोच और सोशलिज्म अप्रोच, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड को कंसिडर करती है, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देती। ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल, इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है। स्पिरिचुअल मीन्स जो वन सेल्फ है, जो हमारी सोल है, प्योर सोल है, उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देती। अब जो सोल है, चाहे आई हैव टोल्ड यू ही वॉज स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ हिंदुत्व। अब हिंदुत्व का ये तो मतलब नहीं ना कि वो हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि प्योर सोल, ठीक है, सोल तो हर किसी की होती है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो किसी और रिलीजन का है। तो इन्होंने बोला है कि इनके अकॉर्डिंग इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में जो सोल है ह्यूमन बीइंग की, जो प्योर सोल है, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्पिरिचुअली पीपल दे शुड डेवलप, और जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी तभी ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। नो डाउट कैपिटलिज्म भी चाहिए, सोशलिज्म अप्रोच भी कहीं ना कहीं ठीक है, बट जब तक एक सोल की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। Okay, so for soul development, spiritual development is required. Spiritual development is absent in Marxism, socialism, and it is absent in capitalist individualism, जिसको हमें डेवलप करना है, और वो डेवलप किसके थ्रू होगा? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल मीन्स अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग तभी बनेगा जब वो हर तरह से ग्रो कर रहा होगा, हर तरफ से डेवलप कर रहा होगा, और वो ग्रो और डेवलप तभी करेगा जब उसकी सोल भी ग्रो और डेवलप करेगी, स्पिरिचुअली भी वो ग्रो करेगा। Okay, now basing his philosophy on the internal conscience, मतलब इंटरनल कॉन्साइंस मतलब उनकी फिलॉसफी खुद के अंदर झांकना, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग खुद के अंदर झांक के देखे कि उसने अपनी सोल को कैसे डेवलप करना है। इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है ना, मॉरल्स के ऊपर बेस्ड है, हिंदू तत्व की जो फिलॉसफीज है उसके ऊपर बेस्ड है। तो प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चित्त। तो इनके अकॉर्डिंग जो प्योर ह्यूमन सोल है उसको हम चित्त बोलते हैं, ठीक है। दीन दयाल उपाध्याय एडवाइज्ड अ क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम। तो दीन दयाल उपाध्याय जी ने एक ऐसे सोशल सिस्टम की बात की है जिसमें कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्लास को लेके डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सोसाइटीज़ में डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। एवरीबडी शुड बी अ इक्वल पार्ट ऑफ सोसाइटी। जस्ट रिमेंबर दिस फर्स्ट पॉइंट, प्रीमिसी ऑफ होल। अगर आप अलग अलग होके चलोगे तो आप पूरे हो ही नहीं, आप पूरे तब हो जब सभी इकट्ठे हो, ठीक है। प्रीमिसी ऑफ धर्मा, काम करो अपना, काम से ही डेवलपमेंट है। देन ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, इंडिपेंडेंस तभी है जब आप काम कर रहे हो, आप सभी इकट्ठे मिलकर चल रहे हो, तो सबकी फ्रीडम उसी में ही है। सो ही वांटेड अ सोसाइटी जो कास्टलेस हो, क्लासलेस हो, और उसके बाद उस सोसाइटी में डिफरेंट सोशल सिस्टम्स में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना हो। फाइन, सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और अगर आप देखते हो इनके नाम पे काफ़ी हॉस्पिटल्स भी हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी खुली हुई हैं।
and he was a very famous, very good social reformer, and you can say a very good philosopher who had given this concept of integral humanism. So whatever I have told you or whatever I have taught you right now, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इनफ, बट मतलब इनके बारे में रीड करना या राम मनोहर लोहिया जी के बारे में रीड करना या दिस नारायण जी के बारे में रीड करना, इन सब के बारे में जितना हमने किया है ये बहुत कम है, बहुत कम, क्योंकि इनकी जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत सारी, तीनों चाहे जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे, इनकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, और हमने तो बहुत कम, हमने तो सिर्फ एक कहते हैं ना जिस्ट एक सिर्फ झांका है इनकी ज़िंदगी में कि क्या था, अभी तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने का। तो इनके ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, कोई वो रीड करे तो एक्चुअल में पता चले कि इनकी फिलॉसफीज क्या है एंड हाउ दे आर वर्किंग। बट सिंस दिस थिंग इज एडेड इन योर सिलेबस, न्यू ऐड की हुई आपके सिलेबस में, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो, सो फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यू कैन डू दिस मच रिगार्डिंग देयर फिलोसफीज। Okay, so with this I finish up with the part 2 of this chapter, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, और बाकी आगे हम करेंगे एमरजेंसी पीरियड ऑफ 1975 इन आवर थर्ड वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।